Hello, hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. How are you? I'm I, fine, sir. What about you? yeah, you can listen my voice. Yes, sir. There is no problem. Acha, I'm sharing the three documents. You tell me whether it is visible to you or not. Okay, Okay, sir. okay. This is visible illustration 37. Yes, sir. Okay, and then this painting. I'm Visible, sir. visible. I'm Yes, writing something. This is visible. yes, sir. Visible. Okay, and what about this document? This Yes, sir. Visible. visible. Okay, now Yes. should I start now? Yes, sir. How many people have joined? 11. Very low. Still people are, well, they will come or still, hello? I think we'll wait for 2 to 3 minutes. Okay. Then in the meantime, I should start the what I taught you in last class. Yes, sir. Okay. In last class, I have discussed about the two things. One is called node. One is called node. What is that? Okay. One is called node, and one place to another place. If you are moving, this is called one, and this is called two. When any activity it is always moving forward, or activity is this one, and this is called node, this is called node. There are two ways to draw the network. One is through the node system, and another is through the activity system. In node system, we start the networking with the lowest number, and termination is the highest number. Okay. And in activity, there are two ways are there. One is called succeeding activity, another is called preceding activity. When in question they are writing immediate precedence, it means if there is a and there is another node that is called, this is called P, and it is represented by P. How in question they will write it? In A they will write there is no there is no activity. It means A is an independent activity and it is a starting point. If they are writing B, if they are writing B like this, then they are saying it is starting from A. It means when the A activity will finish, then only B activity will start. In question like this, if they say this is another system is there and this is called C. If they write C will start. C will start from A. It means both activity will start from this one. But if they say he has a two activity, okay, so they will write in two activities they will write comma, so like this, okay. Yes, So sir. this is the way you can draw the network. So there are two ways are there. One is called node system, and another is called activity system. In this question, they will write you like this, and you have to answer it. So first, I'll tell you how to draw. How many people have come? Hello. How many people have come?
हेलो, Yes, sir. should I start new thing or should I wait for them? सर स्टार्ट करते हैं. अच्छा, कितने बच्चे हैं? 14-15 बच्चे हो गए हैं? Yes, sir. 16. 16? चलिए फिर स्टार्ट कर. चलिए, आज लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू ड्रॉ. दिस इज 1, दिस इज 2, this is called 1 and this is called 3 and this is called 2 and this is called 4 and this is called 3 and this is called 5 and 4, 4 and 5. This is my network system. So it is a very simple way. You have to start with 1 and you have to finish at 5. This is a very clear system is there. तो आप क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे 1 ड्रॉ करेंगे, 1 से 2, ये याद रखिएगा, ऐसे जरूर बनाते जाइएगा, ठीक है, एग्जाम में. और फिर 1 से 3 है तो आप 1 से 3 कर लीजिए. फिर 2 से 4 है, आप 2 से 4 कर लीजिए. और 3 से 5. 3 to 4 to 5 है. और 3 to 5. ये ऐसे नेटवर्क ड्रॉ करना है. दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल आई हैव गिवन. Yes, sir. Some activity has to complete, then you have to add a dummy, and that is a broken line, broken arrow you have to design. And dummy does not have any resources. It is only waiting for the time. When the other activity will finish, then only next activity will start. That's why we are using a dummy. Okay? Okay, sir. तो अभी start करें. चलिए. Yes, sir. एक क्वेश्चन मैं आपको आपकी किताब में देखता हूँ पहले कौन सा है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जिसमें एबीसी हो. Check. ये है. Sir, question number 35. ये हाँ 35 है. चलिए स्टार्ट करें. Yes, sir. हैं? Yes, sir. तो आप मेरे को बताते जाएंगे कि इसके प्रीसीडिंग एक्टिविटी क्या क्या है, या मुझे जी सर. यहाँ लिखूं मैं आपके सामने. हेलो, सर बता देंगे सर. बता देंगे. अच्छा, ये याद रखिएगा, जब भी एक्टिविटी होगी वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम जहां तक होगी वो होगी. और यहाँ पे जो होगी उसका एक्शन लिखा होगा कि कौन से एक्शन के बाद आपको स्टार्ट करना है. स्टार्ट करें. यस सर. चलिए. पहले मैं एक दो एक्टिविटी यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है. ठीक है सर. ए के पहले कुछ नहीं है ना, नहीं सर. और बी के पहले ए. है, ए है. ए. अच्छा, और सी. ए. ए से, और ई. सी. सी से. हाँ जी, सी से. अच्छा भाई, इतना ही अभी कर लेते हैं, बाकी मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ. पहले इतना ड्रॉ करना चाहिए. अब देखिए, ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द इनिशियल एक्टिविटी. ए जो है उसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही. इसका मतलब क्या हुआ कि यू हैव टू ड्रॉ ए 1 और इसको आपको करना पड़ेगा 2. ये बात समझ में आ गई? अरे Yes, बोलिए. sir. और इसको आप लिखेंगे ए. ये कर लेंगे. अब आप देखिए Yes. बी को. अब बी किसके पहले स्टार्ट हो रहा है? ए. ए से. तो आप क्या यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बी करेंगे और यहाँ बी कर देंगे. यस सर. अब आप देखिए बी के पहले ए एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो गया और सी जो है वो भी ए से स्टार्ट हो रहा है. इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको सी ड्रॉ करना है.
ये बात समझ में आ गई? अब आप देखिए, बी जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, सी ए से स्टार्ट हो रहा है, दोनों मेंशन होगा यस सर। होगा। और डी किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? 5। यहाँ पे डी। बी, ये आप कर लेंगे। आगे क्या है? यस सर। आगे क्या है? ई। ई। ई किस में है? बी और सी। बी और सी से है। हाँ जी। अब यहाँ पे दोनों एक्टिविटी के साथ उसको स्टार्ट करना है। अब बी और सी जो है वो ज्वाइंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डमी से जोड़ देंगे। हेलो, यस सर। इसको डमी से जोड़ देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 कर देंगे। और देखिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? ई। अब आप देखिए, ई तभी स्टार्ट होगा जब बी और सी एक्टिविटी दोनों खत्म हो जाएगी। ओके। ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एफ किस में है? एफ। एफ। एफ डी और ई में। है, डी और ई में। डी ई। डी ई। यस। अब देखिए, डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइंट करेंगे डमी से, डमी ऐड करेंगे। डमी ऐड करेंगे और यहाँ पे हाँ क्या जी। करेंगे, 7 पॉइंट। 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जी। एफ एफ। 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 हाँ, अब जी किस पे है? जी ई पर। ई ई पर है, तो ये हाँ जी। यहाँ से सीधे चला जाएगा, 8 पॉइंट। ये जी चला गया। जी। हाँ, आगे एच। एच किससे जी स्टार्ट हो पर। रहा जी। है? जी से, इसी में हाँ आगे जी। बढ़ जाए। यस सर। 9, ये एच हो गया। एच। आई। एफ। आई एफ से, हाँ जी। ये आई एफ हो गया। हाँ, और जे। जे आई एच। ये आई एच। ये ये आई है, हाँ, जे आई और एच दोनों पे है, नहीं, डमी होगी ना आई इसमें। एफ से स्टार्ट है हाँ जी। और एच और आई दोनों के बाद जे स्टार्ट होगा। यस सर। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको मैं इधर कर देता हूँ और इसको मैं उड़ा देता हूँ। देखिए, इम्प्रूवमेंट हो गया। हेलो, समझ नहीं आया सर। ये देख, अभी बता रहा हूँ। अभी आपने देखिए, यहाँ पर मैं ये क्या बोला आपने, यहाँ पे जे है, जे आई एच। ये आई है। अब देखिए, एच और आई जब एक्टिविटी खत्म होगी तब जे स्टार्ट होगा। यस सर। तो आ गया, सिस्टम में आ गया, आपको डमी यस सर। बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है सर। आप डमी से भी जोड़ सकते थे और बिना डमी के भी जोड़ सकते थे। तो ट्राई टू एलिमिनेट, कि सिंपल जितना बना सके उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो के जे पे। आंसर विल रिमेन सेम, बट ओनली थिंग इज दैट कि आई एम गिविंग यू आइडिया कि विदाउट डमी आल्सो यू कैन ड्रॉ। अच्छा, यस जे के सर। बाद क्या है? के जे। हैं? के जो है इसके जे बाद से है start सर। होता हाँ जी। के जे। है, ये के है और इसके बाद 11 हो गया। और कोई? नहीं सर, बस। ये दिस इज द फाइनल। यस सर। इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं बताता हूँ फिर आपको। अब आप देखिए, चेक करते जाइएगा, अपनी किताब में चेक करते जाइएगा, ठीक है। ये ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं दी, ठीक है। हेलो, यस सर। और बी जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी जो है आप देखिएगा ए से स्टार्ट हो रहा है।
ठीक है, यस सर। सी और ए से स्टार्ट हो रहा है, ये सी जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सही है। ई जो है वो यस सी से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए सी से स्टार्ट हो रहा है। ई जो है, ई जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, बी और एफ, बी और सी, बी और सी है ना, बी और बी और सी, यस सर। तो बी और सी से स्टार्ट हो रहा है ये ई, ये भी देख लीजिए, ठीक है। जी जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सही है। एफ जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सही है, ठीक है। और एच जो है वो जी से स्टार्ट हो रहा है, आई जो है वो एफ से स्टार्ट हो रहा है, और जे जो है वो एच और आई से स्टार्ट हो रहा है, और के से स्टार्ट हो रहा है। ये देख लिया, आपका नेटवर्क प्रॉपर आ गया। हेलो, यस सर। यदि आप चाहते हैं तो इस वाले आई को यदि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता, सुनिए, यहाँ पे एक नंबर डाल देता, फिर तो मुझे डमी क्रिएट करना पड़ता, ठीक है, जो मैंने यस नहीं सर। किया, ठीक है। यस अब आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, यस सर। चलिए एक ड्रॉ करिए जरा, किताब क्वेश्चन कोई है ऐसा किताब में, किसने भी वैसे ड्रॉ किया है, एच आई और जे को मिला दिया है। हेलो, यस सर। हाँ इसने भी वैसे ड्रॉ किया है, कहाँ है, एबीसीडी वाला को बताइए, कोई क्वेश्चन बताइए। चलिए ये क्वेश्चन है, हेलो, यस सर। ये क्वेश्चन है फिगर 1, ठीक है। यस सर। ठीक है, ए के पहले कुछ नहीं है, बी जो है ए पे डिपेंडेंट है, सी बी पे डिपेंडेंट है, डी ए पे डिपेंडेंट है, इसको ड्रॉ करिए, ठीक है। इसको ड्रॉ करिए। और नहीं होगा तो फिर मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन नहीं ठीक है, हेलो, इसको रहने यस सर। दीजिए, इसको रहने दीजिए। वैसे ड्रॉ करना है तो कर ले सकते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, ये हमने ड्रॉ कर दिया ना, 35। यस सर, ये तो कर दिया हमने। अभी और कौन सी है, सर 38 क्वेश्चन नंबर 38। 31 2 ये नहीं है, नहीं सर, अलग है ये। ये नहीं है, सर ये फिगर 1 वाले से पहले एक एग्जांपल है। हाँ फिगर 1 से पहले एग्जांपल है 345 पेज नंबर पर। 340, 5। ये ये तो नेटवर्क एनालिसिस यहाँ आ गया। स्टार्टिंग में पेज एग्जांपल है सर। 345. तो दिस वन। दिस वन, हाँ, यस सर। चलिए इसी को करिए, हमें ज्यादा चाहिए। इसी को ड्रॉ करिए, फिर यही तो है। इसको ड्रॉ करिए। एफ जे के पीछे एफ के पीछे एफ, एच के पीछे जी, एच के पीछे जी, जी,
आई के पीछे एफ, आई, जे के पीछे आई और एच, ये कर सकते थे हम। आई 9 और जे के पीछे आई और एच, एन, जे के पीछे जे, के 11, Sir, can you explain these numbers inside the node? हाँ, वो नंबर को छोड़िए अभी, आप खाली ड्रॉ करना सीखिए बस, उसको आप छोड़ दीजिए, मैं बाकी बात समझाऊंगा। सर ये पॉइंट डी और ई कैसे होंगे? अभी मैं कर रहा हूँ, बताता हूँ, 1 मिनट, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 मिनट। जी सर। हाँ, चलो कौन सा पॉइंट? डी और ई। 1 मिनट। हाँ, डी और ई कैसे ड्रॉ करना है? यस सर। हाँ, तो ए मतलब जहां से आपने ए स्टार्ट किया ना, 1 से स्टार्ट कर यस। दीजिए, डी 1 से स्टार्ट कर दीजिए, ओके सर। क्योंकि उसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ई के भी आगे एक्टिविटी नहीं है, तो इसका मतलब वो जहां से आपने ए स्टार्ट किया वहीं से 1 से स्टार्ट कर दीजिए, ओके सर। 1 से स्टार्ट कर। डन सर। सबका हो गया? यस सर। मैं ड्रॉ यस सर। मैं ड्रॉ करूं? नो। कोई जरूरत है, किसी को जरूरत है समझने की? हेलो, शुड आई ड्रॉ? नो सर। हाँ, बोलो बच्चा, ड्रॉ करते हो तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ कर दूं? अरे बोलो, हाँ या ना? नो नो। नो? सर यस सर। ठीक है, नो नो है तो फिर चलिए, फिर मैं आगे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ, ए के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, बी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, सी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है,
डी ए से स्टार्ट हो रहा है, ई बी से स्टार्ट हो रहा है, एफ सी से स्टार्ट हो रहा है, जी डी से स्टार्ट हो रहा है, एच एफ जी से स्टार्ट हो रहा है। सर हो गया नोट, तो पढ़ रहा हो गया? नोट किया है सर अभी। नोट कर लिया? एच एफ जी नोट कर लिया? यस सर। चलिए नोट कर लिया तो फिर करिए, या मैं इसको ड्रॉ करूं आपके साथ साथ? आप बताते जाइएगा मेरे को, ठीक है? यस ठीक है। चलिए, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये ए हो गया। फिर बी भी कुछ। इसी से स्टार्ट करना है, यस सर। हाँ? यस सर। हाँ, बी हो गया और नेक्स्ट बी से स्टार्ट होगा। सी भी, चलिए सी भी हो गया और डी ए। डी ए से, यस सर। हाँ, ई बी। ई बी से, यस सर। सर ये कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइन कर दें? आगे है कोई जो ज्वाइंट है दोनों ईडी? ईडी से सर जी निकल रहा है। हाँ, तो इसको ज्वाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ। इसको यहाँ ज्वाइन कर दूँ यस सर। ऐसे, ठीक है? हाँ, आगे आगे बचा एफ सर सी से। एफ सी से, यस सर। हाँ, जी डी और ई से। ई और ई से। एफ एफ जी तो नहीं जुड़ा हुआ कहीं बाद में? एच निकल रहा है सर एफ जी से। हाँ, हाँ जी एफ जी से एच निकल रहा है। तो इसको जोड़ दो। यस सर। हाँ, आगे एफ जी से क्या निकल रहा है? एच। यस सर। हाँ, आगे बस सर। हो गया, खत्म? यस सर। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। फिर समझा दूं? अच्छा, ए जो है वो उसके पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये समझ में आ गया? यस सर। टी के पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये यस क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? सी के सर। पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, ये तीनों Yes, sir. स्टेप क्लियर हो गए आपको? यस सर। अच्छा, सी जो है वो एफ बता रहा है, एफ नहीं, डी कहाँ से है? डी बी से स्टार्ट हो रहा है, डी ए से, ए से। ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ठीक है? यस सर। अरे बोलिए। यस सर। हाँ, ई किससे स्टार्ट हो रहा है? बी से। तो ये ई और बी ये मिल गया, ठीक है आपका? यस सर। अच्छा, और एफ सी से। एफ सी से, ये भी सही है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। हाँ, जी डी और ई से। ई ई ये है और ई को दोनों कंबाइन कर दिया और ये यहाँ पे ई ले गया, ये भी ठीक है। ठीक है सर। और एच एफ और जी से।
एफ और जी से ये एफ है, ये जी है। जब दोनों एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तभी आपका एच स्टार्ट होगा। ये क्लियर? यस सर। डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। चलिए, आपको क्रिटिकल पार्ट ड्रॉ करने आ गया? यस सर। चलिए, अब मैं एक छोटा सा काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी किताब से क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसको पहले हटा दूँ। ये आपने क्रिटिकल पाथ निकालना तो सीख लिया था ना? यस सर। चलिए, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप जो है इलस्ट्रेशन नंबर ये 38 निकालिए। इलस्ट्रेशन नंबर 38। हेलो? यस सर। यस, 38 देख लिया आपने? यस सर। हाँ, इसको आप लोग ड्रॉ करिए और क्रिटिकल पाथ निकालिए पहले। टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है 2 4 10 4 10 5 36 12 4 12 8 6 और 12, ये आपको दिया हुआ है। तो लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा दैट विल बी योर क्रिटिकल पाथ। पहले नेटवर्क ड्रॉ करिए, फिर क्रिटिकल पाथ निकालिए। ठीक है, ओके फिर आगे सर। पढ़ाता हूँ। ये टेबल जो है ये मैं इतने सिंपल तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? ओके सर। ठीक है, पहले आप उसको करिए। मैं अभी ये नहीं बताऊंगा कि अर्लीस्ट टाइम क्या होता है, लेटेस्ट टाइम क्या होता है और फ्लोट टाइम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको खाली तरीका बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर ये आप अपने आप पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चा? यस। चलिए, तो पहले आप नेटवर्क ड्रॉ करिए और क्रिटिकल पाथ निकालिए। और या तो कहिए मैं ड्रॉ कर दूं। हेलो? कहिए तो मैं यस ड्रॉ सर। कर दूं ड्रॉ। पहले ट्राई कर लेते हैं सर। अच्छा, आप कर लीजिए, कोशिश कर। हाँ जी, फोन किया जी। हाँ बोलो। खड़ का मतलब होता है जो खड़ा ना मारे होता है, टिकट तार और उसको खड़ बोलते हैं। हाँ हाँ, तो वो तेलुगु बोलते हैं। तो तेलुगु बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, राइट। वो खड़ा खड़ा ना मारा भी बोलते हैं ऐसे। और जो किसी आदमी में चिकन तार निकल आते हैं ना, तो वो खड़ा ना मारा बोलते हैं पंजाबी। अभी देखना, यहाँ पे कहते हैं स्वाइट कनिया पै गई है, ऐसे बोलते हैं तो चिकन तार निकले। हाँ हाँ,
है। हाँ, चलो मैं जरा क्लास है, चलो बात। हो गया सर। हो गया? यस क्या सर। टाइम आया? क्या टाइम आया? 80 days, sir. हैं? 80 days. 30 डेज? 80, 80, 80 डेज? 80. अच्छा चल, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब आपको चेक करता हूँ whether you have drawn राइट वन और आपने गलत किया। मेरे को बताते जाइएगा, ठीक है? हेलो? यस सर। हाँ, मेरे को बताते जाइएगा। चलो बच्चा, ये 1 से 2 है। वन से टू यही है। अच्छा, ऊपर नीचे आप डायरेक्शन देते जाइएगा मेरे को, कहाँ ड्रॉ करना है। इसका टाइम क्या है? 2 आवर्स। अरे बोलो बच्चा। यस सर। हाँ, इसके बाद 2 से 3. 2 से 3 इसी में आगे सीधे चलूँ? ऊपर चलिए. नहीं सर, ऊपर ऊपर। चल। यस सर। ऊपर चला गया। इसका टाइम कितना है? 4. 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सही बताइएगा। हाँ, आगे 3 से 4 ऊपर. 3 से 4। 3 से 4 इसी में सीधे चलूँ? यस ऊपर. सर। 3 से 4 इधर। यस सर। हाँ, इसका सी है। यस सर। इसका टाइम 10। कितना है? 10। 10 आवर्स। हाँ यस हाँ। सर। अच्छा, नेक्स्ट 2 से 4। 2 से 4 डायरेक्ट है। यस सर। डी पॉइंट। कितना? डी 4 आवर्स। 4 आवर। नेक्स्ट 4 से 5। ऐसे चला जाऊँ? नीचे। नीचे जाऊँ? यस सर। ऐसे? यस सर। हाँ, 4 से 5 ये 10 आवर्स। 10 आवर। ई पॉइंट। हाँ 2 से 5। हाँ 5 आवर्स। हाँ। 5 से 8। नहीं, 5 से 8 अभी कहाँ से आ जाएगा? पहले और बताइए। 5 से 6। हाँ, 5 से 6 बताइए। 12 आवर्स। ऊपर जाऊँ नीचे जाऊँ सीधे ऊपर। जाऊँ? ऊपर ऊपर जाऊँ सर। ऐसे? यस सर। ऐसे? यस सर। हाँ 6। 12 आवर्स। हाँ 6 से 8। तो सर पहले हम 5 से 7 लेते हैं। हाँ। नीचे। नीचे? अरे, 12 आवर्स। ये भी 12 आवर्स है। यस सर। हाँ, अब 5 से 8। 5 से 8 यस सर। स्ट्रेट। स्ट्रेट चला जाऊँ? हाँ 36 आवर्स। 36 आवर्स। 6 से 8। 6 से 8 4।
4 hours. 7 से 8, 7 से 8, 8 hours. और 8 से 9, 8, हाँ 8 से 9, 6 hours. यही है और भी है? Yes sir. 9 से 10, हाँ 9 से 10. 9 से 10, Yes sir. 12. ये सबका ऐसी आया नेटवर्क? Yes sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करें। Yes sir. थोड़ा सकता है ना, हाँ मतलब शेप है तो उससे थोड़ा डिफरेंट भी तो हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ओके नहीं होना चाहिए और एंड 10 ये सबको समझ में- हाँ ओके सर, ये सबको समझ में आ यस गया? सर, चलिए अब मैं 2 काम करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं 1 से लेकर 10 तक फॉरवर्ड मूव करूंगा, तो Yes, sir. ठीक है। और मैं आपके लिए यस नहीं सर, बता रहा हूँ कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, खाली आपको स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। हेलो, Yes sir. चलिए F1 जो है फॉरवर्ड, और जब मैं वापस आऊंगा ना तो वो बैकवर्ड होगा, बी लिखूंगा, ठीक है। तो मैं अभी पहले फॉरवर्ड का मूव कर रहा हूँ। F1 का मतलब है कि ये जो 1 है, ये जो 1 है इसका टाइम कितना है? 0, बोलिए, Yes sir. क्योंकि F1 इज ए स्टार्टिंग पॉइंट। हेलो, Yes, sir. Yes sir. ये सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ये सबको क्लियर है? Yes sir. हाँ चलिए, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F2 2. F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा? ये क्लियर हो गया? Yes, sir. अरे बोलो बच्चा। Yes, sir. हाँ F3 की वैल्यू क्या होगी? 2 plus 4. 6, F3 की वैल्यू क्या होगी? 2 + 4, हाँ 2 + 4। आंसर क्या होगा? 6, ये समझ में आएगा? क्योंकि F2 यस में आपने ऑलरेडी 2 आवर्स लगा दिए हैं। हेलो, यस सर, और F4 की वैल्यू कितनी होगी? 6 plus 10. 16, 6 + 10, F4 F4 की वैल्यू कितनी होगी? 6 + 10, तो आपने ये एक यहाँ पे स्टेप सीख लीजिए, ये मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैक्सिमम टाइम लेना है, किसके बीच में लेना है? ये C की वैल्यू कितनी थी? 10 थी 10, ना? यस सर। ये इसमें से मैक्सिमम कौन सा आ रहा है बताइए आप? सर ये नहीं समझा। हैं? सर ये F2 + 10 नहीं होगा? अच्छा F2 + 4 होगा, ओके ओके। देखिए आप 2 रास्ते से 4 पे जा सकते हैं। हेलो, यस सर। हेलो, Yes, sir. तो आप 4 जो है 2 रास्ते जा सकते हैं, 3 से भी जा सकते हैं, 2 से भी जा सकते हैं। यस यस सर, सर। तो जब आप 3 से जाएंगे तो F3 + C का टाइम जोड़ेंगे 10, हाँ 16 आएगा।
16 आएगा, और जब आप 2 से जाएंगे तो F2 प्लस 4 करेंगे 6 आएगा। तो 6 आएगा। तो इसमें मैक्सिमम कौन सा है? 16। 16। तो यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आ गई, 16 यस सर। और दूसरी कितनी आ गई? 6। तो यहाँ पे F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। 16। ये बात क्लियर हो गई? यस। यस सर। अच्छा, अब F5 में आप दो रास्ते से जा सकते हैं, 2 से 5 जा सकते हैं और 4 से 5 जा सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम होगा वो कंसीडर करना है। अब आप F5 खुद कैलकुलेट करिए, F5 खुद कैलकुलेट करिए इसी तरीके से, ओके मुझे सर। आंसर बताइए, फिर मैं आपको वेरीफाई करता हूँ कि सही सोच रहे हैं कि नहीं। So 20. सर हैं? 26। 26 आया? यस सर। एक चलिए 7 है और एक 26 है, तो 26 आएगा। तो 26 आएगा, यहाँ लिख दूँ यस 26? सर। सबका आ यस गया? सर। अरे बोलो बच्चा, सबको आ गया है? नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूँ। हेलो, यस सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? हेलो हेलो, यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर है? यस सर। चलिए F6 की वैल्यू कितनी होगी अब? यहाँ बताइए F6। F6 की वैल्यू तो F5 प्लस 12 38 सर। बोलिए, 38। 38 कर देते हैं, डायरेक्ट कर देता हूँ। और F7 की वैल्यू 38 इसकी भी सर। है, 38 ये भी 38 आ रहा है। सर। अच्छा, F8, देखिए 3 रास्ते से पहुंच सकते हैं F8। आप 5 to 8 जा सकते हैं, 6 to 8 जा सकते हैं, 7 to 8 जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम बताइए कितना आएगा? 62 सर। 3 रास्ते हैं F8 के। सर 62। 62। यस। चलिए, और F9 की वैल्यू 68 बता दीजिए। F8 की वैल्यू, चलिए यस सर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए F8 की वैल्यू, F8 की वैल्यू होगी, वो 3 रास्ते से आप जा सकते हैं। हाँ, पहला रास्ता क्या है? F5 प्लस 12। दूसरा रास्ता क्या है? F6 प्लस 4। तीसरा रास्ता क्या है? F7 plus 8। F7 प्लस 8। इसमें से मैक्सिमम किसकी वैल्यू आ रही है? F5 की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 26। यस सर। 26 प्लस 12 कितना हो गया? 38 हो गया। यस सर। F5 प्लस 36 होगा। हाँ? F5 प्लस 36 होगा। F5 यस। प्लस 36 F5 प्लस 36 होगा। आपने तो गलत बताया, फिर इसका मतलब F5 जो है यहाँ पे 36 होगा। हेलो, क्या आप लोगों ने यस गलत सर। बताया?
चलिए अब ठीक कर लीजिए इसको, पहले F7 की वैल्यू, F8 की वैल्यू अब कितनी 62 62 आएगी। 62 ही आएगी सर। चलिए फिर ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया जिसने पूछा था क्वेश्चन। यस सर, यस सर। अच्छा अब F9 की वैल्यू कितनी होगी 68 68 और F10 की वैल्यू 80 F10 की वैल्यू 80 80 सर। और आपका क्रिटिकल पाथ का टाइम कितना आया था 80 80 डेज। इसका मतलब आपने क्रिटिकल पाथ सही निकाला। ये सबको समझ में आया? यस सर, हाँ यस सर। yes sir ये कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इस समय। हेलो क्लियर सर। क्लियर है सबको। यस सर। चलिए अब मैं थोड़ा सा काम करने जा रहा हूँ। अब मैं बैकवर्ड मूव कर रहा हूँ। अब बैकवर्ड मूव करूंगा तो B10 से स्टार्ट करूंगा। हेलो yes B10 sir से B10 स्टार्ट करूंगा। अरे बोलिए। yes sir अब B10 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 80 80। अब इसमें क्या करना है कि माइनस करना है B9 में टाइम को। B9 की वैल्यू बताइए माइनस करके 80 minus 68 80 सर ये माइनस। बी क्यों लिखा है? मैं बैकवर्ड मूव कर रहा अच्छा हूँ। ठीक है सर, ठीक है सर। ऐसे ही सिंबॉलिक लिखा मैंने कि आपको मालूम है ठीक है सर। जब आप फॉरवर्ड मूव करेंगे तो मैक्सिमम लेना है और प्लस करते जाना है, और जब बैकवर्ड मूव करेंगे तो माइनस करते जाना और मिनिमम लेते जाना है। ओके सर। ठीक है B9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 माइनस 12। अरे बोलो बच्चा यस सर। कितनी हो गई। 68 sir. 68 हाँ और फिर B7 की वैल्यू 68 B8 की वैल्यू इसमें मिनिमम लेना 62 है। sir. कितने 42 तरीके से। एक मिनट। हाँ B8 जो है वो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली B6 में B5 में आपको 3 रास्ते मिलेंगे, उसमें मिनिमम लेना है। हेलो 6 और 7 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, माइनस जाइए करिए। B6 की वैल्यू बताइए, B8 की वैल्यू 62 62 yes sir यस सर। माइनस कर दिया। यहाँ लिख देता हूँ यार, ठीक है। ये कितना हो गया B6 B8, ये B8 हो गया ना, yes sir B8 कितना हो गया 62 yes sir और B7 sir 54 B7 54 हाँ आगे B6 B6 हाँ बोलिए। 8 में से 4 माइनस कर दीजिए 58 58। ये क्लियर हो गया। अब आप देखिए, यस सर। अब यहाँ पे देखिए B5 में, B5 जाने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं, इसमें से मिनिमम लेना है। यहाँ पे लिखिए मिनिमम, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ लीजिएगा। पहला रास्ता क्या है B6 B6, दूसरा रास्ता क्या है B7, अरे बोलो, यस yes सर। sir और तीसरा रास्ता क्या है B8, B8 ठीक है। इन सब में से माइनस करके और टाइमिंग में से माइनस करके आप बताइए मिनिमम कौन सा टाइम आ रहा है B5 का। B6 आपने निकाला 58, तो 58 माइनस 12 तो आपका हो गया 46। हेलो sir 26 आएगा हाँ 26 6 आएगा, चेक कर लीजिए पहले देख लीजिए। अच्छा और दूसरी जगह 8 से 5 गए तो 8 की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी 62 minus 36 हाँ 36 कितना हुआ 26 26 और 7 से 5 में गए yes 42 42, तो मिनिमम कौन सा हुआ
26. अरे 26 हुआ। Yes, sir. हाँ, अब 5 से 4 में से 26 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. चलिए करिए। B4 की वैल्यू 16 करिए। और B3 की वैल्यू जो है 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा। हेलो, Yes, sir. हाँ सर 6, B5 की वैल्यू हम 26 लेंगे। हाँ मिनिमम लेना है, मिनिमम। ठीक है, क्या मैंने लिखा, मिनिमम लिखा है। ओके सर। सर B2 की 2 आ जाएगी। 2 आ जाएगी और 2 Yes, माइनस 2 कर देंगे तो B1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। जीरो। Yes, sir. आ गया। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। Clear है सर। सबको क्लियर है? एक कर दीजिए, हाँ? एक बार और कर दीजिए, अच्छा एक बार और कर दीजिए। अच्छा, एक बार और कर देता हूँ बच्चा, कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि जब हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड मूव करेंगे, जब यहाँ से फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हमेशा मैक्सिमम लेना है जहाँ पे 2 पाथ आते हैं, और हमेशा टाइम को क्या करना है, ऐड करते जाना है, टाइम को ऐड करते Yes, जाना है। और जब बैकवर्ड मूव करेंगे, जब बैकवर्ड मूव करेंगे तो मिनिमम लेना है, मिनिमम लेना है और माइनस करते जाना टाइम। ये 2 स्टेप याद रखिए। yes sir. तो F1 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है। F2 की वैल्यू में 0 में से 2 टाइम ऐड कर देंगे तो F2 वैल्यू निकल आएगी। F3 की वैल्यू, F2 में आप और F2 पहुंचेंगे तब F3 स्टार्ट होगा। तो आपने 2 आवर्स F2 में खर्च कर दिए, F3 पहुंचने के 4 घंटे लगेंगे, तो 2 + 4 = 6 निकल आया। Yes sir. Yes sir. अच्छा, 4 जाने के लिए आपको क्या रास्ते, 2 रास्ते हैं, 3 से भी हाँ। जा सकते हैं और 2 से भी जा सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको आपको कंसीडर करना है। हेलो, ठीक है सर। ये क्लियर हो गया? ये यहाँ Yes पे sir. करके दिखाया हुआ है, ये Yes sir. देखिए 3 + 10 2 4, ठीक है। इसमें मैक्सिमम Yes. टाइम 16 है, ये मैंने कंसीडर कर लिया। हेलो, Yes sir. अब बैकवर्ड जाने के लिए क्या है, अब आपके पास इसकी वैल्यू मालूम है, इसकी वैल्यू मालूम है, ये Yes वाले sir. की वैल्यू 12. 80 80, 80. Yes sir. 80. हाँ 80 - 12 करना है, फिर 12 उसमें से फिर 6 माइनस करना है। इस तरह से मिनिमम वैल्यू लेते जाना और माइनस करते हुए B1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है चलो, सर। ये सबको क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए अब मैं एक स्टेप बोल रहा हूँ, उसको लिखिए। F1 - B1 लिखिए, क्या आता है, टाइम लिखिए। F1 की वैल्यू 0 है, B1 की वैल्यू क्या है, 0. 0। जीरो। तो F1 - B1 क्या है आपके पास, जीरो। 0. इसका मतलब है कि ये क्रिटिकल पाथ का पार्ट है। ये क्लियर हो गया? Yes sir. अच्छा, F2 - B2 करिए। F2 की वैल्यू कितनी है, 2। 0 ही आएगा सर। 2 Yes, minus sir. 2. ये 0 आ रहा 2 है, minus 2 0. ये भी 0 आ रहा है, तो ये आपका क्रिटिकल पाथ का है। ये Yes sir. क्लियर हो गया? अच्छा, F3 और P3 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0. जीरो। ये भी। तो इसका मतलब है
कि ये भी क्रिटिकल पाथ का है? यस सर। क्लियर हो गया? F4 और Yes. B4 की वैल्यू कितनी है? 0 सर। ये भी 0 है, ये यस भी सर। Yes, sir. क्रिटिकल पाथ का हो गया। ठीक है, F5 की वैल्यू क्या है? 0 है सर। ये भी 0 है। यस सर। F5 माइनस B5 ये भी 0 है। चलिए F6 की वैल्यू, सर माइनस F6 और B6 की वैल्यू माइनस मत देखिए, -20 हाँ? 20 है सर। 20 20 है। तो ये क्रिटिकल पाथ नहीं है, इसको बोलते हैं फ्लोटिंग टाइम। ये आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? हेलो, हेलो। Yes, यस sir. सर। हाँ, तो F6 की वैल्यू जो है उसमें आपके पास 20 आवर्स का मार्जिन बचा हुआ है। आप 20 आवर्स डिले भी कर देंगे तब भी प्रोजेक्ट का टाइम जो है डिले नहीं होगा, उसका मतलब फ्लोटिंग टाइम। तो ये क्रिटिकल पाथ में नहीं आया। जिसमें 0 0 आएगा वो क्रिटिकल पाथ होगा। F7 की वैल्यू बताइए। F7 माइनस B7 19।19। यस सर। माइनस 16 आएगा ना? 16 आएगा सर? चलिए 16 आएगा, वो 0 नहीं आया। नहीं सर। हाँ, नो सर, अच्छा 8 की वैल्यू बताइए। 5 0. 8। हाँ, F8 और 0 B8 की वैल्यू कितनी है? 0 सर। तो इसका मतलब ये क्रिटिकल पाथ हो गया। अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. हाँ, और वो 9 भी 0 है। की और F9 की 0 है सर बाकी 0. दोनों। 0। तो ये क्रिटिकल पाथ Yes. यही आया था आपका। हेलो, यस सर। अब मैं किताब पे आ जाऊँ? Yes, sir. यस अब किताब पे आ जाऊँ, ये बात सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. चलिए, ये किताब में देखिए लास्ट में फ्लोटिंग टाइम लिखा हुआ है। एक में 19 आप देखिए 0 0 लिखा हुआ है, देखते जाइए। लास्ट वाला देखिए, फ्लोट वाला। हेलो, Yes, sir. आप देखिए। हेलो, सर। देखिए आपका 0 आवर्स 0 आवर्स 0 आवर्स, जिसमें 0 0 है वो सब आपके क्रिटिकल पाथ के नोड हैं, और जिसमें एक्स्ट्रा टाइम है वो क्रिटिकल पाथ के नहीं है। यही 19 20 आपका यही टाइम आया था ना? यस सर। अब आप इसको चेक करिए जरा, इस टेबल को समझिए। पहला टाइम 1 से 2, 0 से 2 है, ये अर्लीस्ट टाइम हो गया। और लेटेस्ट टाइम जो हो गया 0 to 2 हो गया। एक बार फॉरवर्ड जाइए, एक बार बैकवर्ड जाइए। हेलो, यस सर। हाँ, इसमें देखिए 4 घंटे हैं, 2 से 6 घंटे हो गया। लेटेस्ट फिनिश टाइम 6 to 2 हो गया, इसमें 0 आ गया। दूसरे वाले में 10 घंटे हैं, 6 घंटे आपने ऑलरेडी किए, 6 से 16 घंटे लग गए, 10 घंटे लग गए। और उसमें भी वापिस अब आ रहे हैं, तो 6 से 16 वापिस आ रहा, आपका आ रहा है, 16 से 6 हो रहा है, वो भी 0 हो गया। लेकिन 4 वाले में आपका 16 और 4, ये 2 और 6 और 12 और 16, ये आपका लेटेस्ट टाइम आ रहा है। इसमें आपका 10 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। देख लीजिए, इसको समझिए, समझ में आएगा तो मैं समझाऊंगा। ये लास्ट वाला फ्लोट वाला छोड़ दीजिएगा, खाली अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम को देखिएगा। हेलो, यस सर। खाली अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम को देखिए। फ्लोट वाला मैंने आपको समझा दिया कि F1 माइनस B1 करेंगे, F2 माइनस B2 करेंगे, F2 माइनस 3 करेंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। हेलो, यस सर। हाँ, अब अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम को देख लीजिए एक बार। समझिए।
समझा 2 और 6 का। हाँ ये जो ड्यूरेशन 4 है वो 2 और 6 है, स्टार्ट एंड फिनिश टाइम, वो नहीं समझा अर्लीस्ट अरे टाइम में। बच्चा, अरे वहां से स्टार्ट करो ना, ए से। ए से स्टार्ट होगा तो ए में पहले 2 घंटे तुमने ऑलरेडी लगा दिए हैं, 4 घंटे और जोड़ दो तो 6 घंटे हो गए ना। नेटवर्क देखो, हाँ 2 से 4, यही है ना डी वाला। हम्म तो डी वाले में मैंने क्या किया है, 1 मिनट, ये हाँ, ये 2 घंटे ऑलरेडी खर्च कर दिए। हेलो, ये 2 घंटे मैंने खर्च कर दिए हैं, इसमें 4 घंटे ऑलरेडी किए थे। हम्म तो आपका ये आ गया 2 से 6 घंटे हो गए। हाँ 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 2 से 4 पहुंच गए ना 6 घंटे में। हाँ हाँ आप वापिस आइएगा तो वैसे उल्टा देख लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके ओके ठीक है। ओके। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। हेलो, ये और कोई ऐसा क्वेश्चन है आपकी किताब में? नो सर। नहीं है? चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग नोट करिए, खुद कैलकुलेट करिए। सर ये लेटेस्ट टाइम में 2 to 4 वाला बताना एक बारी। ये 2 to 4 वाला, ये वाला। यस सर, लेटेस्ट टाइम 12 और 16। अच्छा ये लेटेस्ट, उल्टा उल्टा आ जाओ, बैकवर्ड में देखो। 16 आवर्स में 4 घंटे माइनस करोगी तो 12 आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। हाँ सर ये एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर लास्ट में एग्जाम का। हाँ, जो बता दो पता है कोई, किस पेज पर है? 271 पर। कौन से, जून वाले में है? क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सर 7। जून वाले में आगे बढ़ना पड़ेगा। दिसंबर वाले में ही है सर, दिसंबर 18 270 371 पे। 371 पे है। हाँ ये दिया हुआ है। ये वाला है? यस सर। हाँ ये वाला है ना, हाँ सर। नॉर्मल टाइम
प्रीसीडिंग एक्टिविटी ये दिया हुआ यही वाला 7th क्वेश्चन। यस सर। चलिए ड्रॉ करिए, इसको करिए, मैं करा देता हूँ, आपको हेल्प करूंगा पूरी, या मैं ड्रॉ करूं? हेलो, ट्राई कर लेते हैं। आप ट्राई करिए, नहीं होगा तो मैं कराता हूँ फिर। इसको हटा दो अब इसमें कुछ पूछना तो नहीं ना? हेलो, सर इसको हटा चैट दो बॉक्स देख लीजिए एक बारी, हैं? चैट देख लीजिए। चैट क्या देखो, चैट मुझे आती नहीं देखने, मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे चैट वर्ड नहीं दिखाई देती मुझे, जो पूछ लो मेरे से बस। हमारा तो क्लियर है सर। किसी को? सर क्वेश्चन, सर एक चीज पूछनी थी हाँ बोलो बोलो। सर। ये क्वेश्चन 38 में जो अर्लीस्ट टाइम स्टार्ट है हाँ, सर, उसमें 6 क्यों आया है? 2 आवर्स लग रहे हैं ना, एक से 2। सर 0 to 6 के बाद 16 नहीं आना चाहिए? हैं? किसमें वाले में? ये एक मिनट, अर्लीस्ट स्टार्ट में। मुझे फिर किताब खोलनी पड़ेगी ना, पेज नंबर पे जाना पड़ेगा। हेलो, यस सर। हाँ 1 मिनट में चला जाता हूँ। ये पेज नंबर कितना है? 356। 371। 1 मिनट। ये वाला क्वेश्चन था ना? यही वाला क्वेश्चन था सर, है? यही वाला था 38। हाँ ये यही है, सर। राइट। हाँ इसमें क्या पूछ रहे हैं आप बताइए। सर इसमें ये स्टार्ट में 0 to 6 2 क्यों है, इसके बाद 16 क्यों नहीं आया? 0 6 16 2। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम? आप ये फिर F2 6। से स्टार्ट हो रहा है, F2 से स्टार्ट हो यस रहा है सर। वो। आप 2 नोट से स्टार्ट हो रहा है ना? यस सर। हाँ तो 2 से 4 जाएंगे, 2 से कहाँ गया? आप कौन सा पूछ रही थी? 3 to सर 4। अर्लीस्ट टाइम का स्टार्ट। अर्लीस्ट टाइम का स्टार्ट जो है किस वाले नोट का पूछ रही हैं आप? 2 to 4। 2 to 4 ना? हाँ तो आप देखिए 2 to 4 में आप पहला 1 नोड है, ठीक है? यस सर। तो 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये 1 है, और 2 to 4 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हेलो, ये देखिए यस सर। यस सर। ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यस सर। तो यहाँ से आप 2 से 4 लेंगे ना, तो ये ऑलरेडी 2 आवर्स है, ठीक यस है? सर। इसका आपने 4 जोड़ कर जब 6 आवर्स हो गया, तो इसका अर्लीस्ट टाइम हो गया 2, इसका हो गया फिनिश टाइम होगा 6। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ और यहाँ पे 6 से 10 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। ओके ओके सर, आ गया समझ। अब समझ आ गया? यस सर। यस सर। यस और सर। यस सर। नो और सर। ये इसको हटा दो, अब इसको हटा दो, ओके। यस सर। हटा दो अब, हाँ? अरे बोलो बच्चा, हटा दो अब, फाइनल में हटाने जा रहा हूँ। अब मैं यस नहीं सर। अब मैं नहीं समझा पाऊंगा इसके बाद। हाँ बच्चा, वो पेज नंबर कौन सा था? 372। 371। 371 है? नहीं नहीं मेरे, देखो घर में जब बैठ के ना 1-2 क्वेश्चन इस तरह करना, प्रैक्टिस करना,
ठीक है, नहीं आएंगे समझ में तो मैं बताऊंगा आपको। Sir, excellent, sir. That float, what is the formula, sir? एक मिनट, फॉर्मूला Yeah, float. फॉर कैलकुलेटिंग दिस थिंग। Yes, sir. अच्छा राइट, यू नोट डाउन। एक मिनट में फॉर्मूला लिख दूं। should I write a formula? Yes, sir. Please, sir. Oh, right. First, you should, what I'm writing it. Right. I'm writing an answer. Okay. Please. Yes, sir. The query. Where is that? Wait a minute. Wait a minute. You should write Yes, sir. the earliest start time. Earliest start time. Earliest start time. Earliest start time of Okay, an sir. activity. Of an activity is given by earliest allowable time of the tail event. Tail event. Of that activity. Is it clear? Yes, sir. Okay. My writing. Yes, sir. Okay. Activity. Okay, sir. Okay. This is clear? Yes, sir. Acha, right. Second part. Earliest finish time. Oh. Earliest finish time Yes, sir. Earliest finish time. Is Yes, sir. Is equal to the equal to the earliest time yes, sir. of the activity On the activity plus the activity time.
when you move forward, then you do these two steps. Is it Clear, sir. okay? And when Yes, sir. Thank you, sir. okay, should I give you a backward also? Yes, please, sir. Okay. Latest backward pass. Latest finish time. Okay, sir. Latest finish time. Should I dictate you? Yes, sir. Latest finish time of an activity. Okay. Of Latest an finish activity. time of an activity. Yes, of sir. an activity is equal to Is. Yes, sir. the latest allowable time. Latest allowable time minus Time. allowable time Yes, sir. of the head event. Of the head event. This is important. Yes, sir. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Is it और कुछ हो गया सबका? Yes, clear, sir. चलिए now I should इसको मैं हटा रहा हूँ फिर नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। चलिए ये काट हाँ ये कौन सा क्वेश्चन था? यही क्वेश्चन था? अच्छा वो क्वेश्चन बताओ जरा कहाँ क्वेश्चन पे है? 7A 70 क्वेश्चन 7A पेज नंबर 371 371 यही है ना? हाँ यही था। चलिए मेरे को जो आप लोग बताते जाइएगा, मैं पहले नेटवर्क ड्रॉ करता हूँ, फिर क्रिटिकल पाथ निकालता हूँ और फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको समझा दूंगा कैसे टेबल बनाना है। यस सर। स्टार्ट यस नाउ। सर। ओके this is your 1, this is your 2, this is A, and what is time? 16 Next एक 2 से 3 हाँ 2 से 3 2 से 3 A के बाद है। हेलो सर सी के लिए हाँ B बी सर 1 से 3 अरे तो फिर आप पहले ये बताओ ना, 1 से 3 बताओ पहले। A B 1 C से 3 बताओ। सर बी 1 से आएगा। हाँ 1 से 3 है सर। बता हाँ 1 से आएगा यहाँ पे। यस हाँ। सर। हाँ अब बोलो इसका टाइम कितना है? 20 20 हैं? 20 और A का टाइम कितना है? 16 16 अच्छा मैंने यहाँ पे खाली 3। हाँ आगे सर सी है ए से। C A से है, यहाँ से यहाँ यस से सर। ये सर कनेक्ट होंगे दोनों। हैं? सर दो और बी तीन और सी connect कनेक्ट होंगे। ये B और C कनेक्ट होंगे यस सर। यस सर। तो इसको दो ऐसे और कर तीन। दूं? यस सर। चलिए हाँ इसका टाइम कितना है? 8 नेक्स्ट सर डी ए से। D A से यहाँ से
यस सर। हाँ, ये क्या है 4? यस सर। हाँ 10। 10 है। यस सर। हाँ आगे। ई सर इसी से कनेक्ट होगा। हाँ 3 से 4 कनेक्ट होगा सर। किसको कनेक्ट करना है? 3 और 4 को। 3 4 को। यस सर। ये एरो ध्यान रखना। हाँ आगे। इसका टाइम कितना है? ई 6। 6। आगे। एफ सर। एफ कहाँ पर है? डी और ई से। ई और ई से। ये ई है। हाँ सर। हाँ 12। ये एफ है। ये और बस सर। बस खत्म हो गया। चलिए इसका पहले क्रिटिकल पाथ आप निकालिए। पहले क्रिटिकल पाथ निकालिए। कलर पेंसिल मम्मा, ये तो कलर। सर 42 आ रहा है। 42 आ रहा है। अभी चेक कर लेते हैं। 42 है। चलिए दोनों का आप चेक कर लेंगे। चलिए F1 की वैल्यू कितनी होगी? 0। F2 की वैल्यू क्या होगी? 0 + 16। हाँ क्या होगा? 16। अच्छा हाँ 16। और F3 की वैल्यू? F3 दो रास्ते से जा सकते हैं। 2 से भी जा सकते हैं, 1 से भी जा सकते हैं। इसमें मैक्सिमम लेना है। बताइए। 24। हाँ 24। हाँ 24। 24। ये आ गया। ये क्लियर है? और बच्चा हाँ यस सर। F4 की वैल्यू कितनी है? F4 F4 में दो रास्ते से जा सकते हैं। 2 से भी जा सकते हो, 3 से सर भी जा सकते F3 24 कैसे आया? हैं। मैक्सिमम लेना है। F1 + 20, F2 + 8। हेलो। ओके सर। F2 + 8 is 24। F4 जाने के लिए you have 2 ways। F2 सर और F4 30। F4 30। F4 30। यस सर। अच्छा मैक्सिमम लेना है। यस सर, एक 26 है और एक 30 है। अच्छा F5 की 30। वैल्यू कितनी है? F5 42। 42। तो इसका मतलब जिसका 42 आंसर आया वो सही है। यस सर। जिसका 32 आया वो गलत है।
कर लेंगे। हेलो, यस सर। Yes, sir. अब B1 की वैल्यू आप बताइए, B5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे बताते जाइए। B5 की 42 है। 42, हाँ, और B4 की वैल्यू 30. ठीक। माइनस करते जाना है। हाँ 30, Yes, sir. हाँ, और 24। हाँ F3 पहुंचने के 24. दो रास्ते हैं, मिनिमम लेना है। 2 से भी जा सकते हैं, 3 अच्छा हाँ. हाँ 2 से भी जा सकते हैं, 4 से भी जा सकते हैं। यस सर, यस पहले सर। B2 की वैल्यू निकालिए, पहले B2 की वैल्यू निकालिए यहाँ पे। थर्टी माइनस 10, 20, 20 सर। हाँ, और B3 की वैल्यू सर 12। है 12। 12 आएगा, और ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। ये समझ में आएगा सबको? ओ बच्चा, मिनिमम लेना है। यस सर, यस सर। 1 जाने के लिए यू कैन गो बाई 2 ऑल्सो, यू कैन गो बाई 3 ऑल्सो, इसमें मिनिमम लेना है। यस हेलो, यस सर। आ गया सबको क्लियर? सर B3 बता दीजिए एक बार। B3, यस सर। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ B3 को। मिनिमम B3 जाने के कौन कौन से रास्ते हैं? B4, और कौन सा है? B2। B2, अरे बोलो। यस सर। B4 की वैल्यू कितनी है? 30। और 30 में से कितना माइनस करना? 6, यस सर। 24। 24 आया। और इसकी वैल्यू कितनी है B2 की? 20। 20 माइनस 8, 12। तो क्या ठीक है आंसर? सर। अब क्लियर हो गया? मिनिमम लेना है इसमें से। यस सर। यस आ गया क्लियर? यस सर। बच्चा, यस सर। यस सर। अच्छा, अब F1 माइनस B1 करो, क्या आ रहा है? 0। 0, और F2 माइनस B2, 4। तो ये फ्लोटिंग टाइम कितना हो गया? फ्लोट 4। यहाँ पे क्या हो गया? 4, यहाँ पे कितना हो गया फ्लोट? 0, यहाँ पे कितना हो गया? F3 माइनस B3, 12। 12, यहाँ पे फ्लोट टाइम 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे कहीं गलती होगा, क्योंकि ये 2 में भी 0 नहीं आ रहा आपका, और 3 में भी 0 नहीं आ रहा है। हेलो, F4 और F5 0। नहीं, तो ये आपने कहीं कैलकुलेशन में गलती किया है, क्योंकि जाएगा कैसे? ये क्रिटिकल पाथ क्या आया था आपका? 42। हाँ, तो कौन सा पाथ लिया था आपने? सर 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। हाँ, तो 1 to 2 लिया था ना, यस सर। और उसके बाद 2 to 3, 3 लिया था। हाँ, उसके बाद 3 to 4। 2 to 4 कैसे आ जाएगा फिर? 2 से 3 से 4 और 4 से 5. आप लोगों ने गलत किया सारा क्वेश्चन। हेलो, सर यस सर। क्यों? कैसे सर, मतलब समझ नहीं आया कुछ। हैं? सर गलत कैसे है? भाई आपका F2 में भी 0 नहीं आ रहा, F3 में भी 0 नहीं आ रहा। हाँ, मतलब F3 माइनस B3 करेंगे तो वो भी 12 आ रहा है,
F2 माइनस B2 करेंगे तो 4 आ रहा है, कैसे हो सकता है पॉसिबल? सर 3 to 16 आएगा, हाँ 4 minus 8 16 आएगा, तो फिर 0 हो जाएगा वो। इसका 16 ये 16 आ रहा है, यस सर, ये 26 होगा 16 आ रहा है, 16। ये यस 16 है, यस सर, ये 16 है। F2 16 आएगा सर। हाँ तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, ये कैलकुलेशन में गलती है फिर आपकी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा फिर 3 पे क्या आएगा? F2 तो ऑलरेडी 16 है ना, सर B2 16 कैसे, मतलब क्या हुआ? B2 16 थोड़ा ना होगा। 2 जाएंगे ना हम लोग, 24 हो रहा है, 3 पे बैकवर्ड में जब आ रहे हैं तो 24 हो रहा है, तो फिर जब हम लिया बैकवर्ड तो में 12 है ना। नहीं 12 कैसे लेंगे, एक बार फिर से करो। अब फिर से करूं मैं? बैक फॉरवर्ड तो ठीक लग रहा है मुझे, मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड में मिस्टेक है, सर FB2 16 आएगा। हाँ B2 16 कर दिया 16 ही आपने। आएगा सर, हाँ B2 16 ही आएगा सर, B2 16 कैसे आएगा? 24 B2 माइनस 8 16 होगा ना, आप देखिए C वाला जो पार्ट है आपका, C एक्टिविटी जो है वो 8 आवर्स की है, या 8 जो भी है उसका टाइम, तो 24 माइनस 8 करेंगे तो 16 आएगा। देन ठीक है ओके। F3 24 है ना, 24 माइनस 8। माइनस 8 16 माइनस 16 0। हेलो अब मैं करूं, बैकवर्ड कर देता हूं, अब आपका कैलकुलेशन सब बेकार है, मैं इसको फिर से करता हूं, ठीक है? हाँ कर दीजिए सर। मैं कर देता हूं, और जरा मेरे को फिगर बताते जाइएगा। चलो बच्चा, अब मैं B5 की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, और एक एक स्टेप मैं करता जाऊंगा। 42 B4 की वैल्यू 30, 42 माइनस 12 42 माइनस 12 30, 30, और C की वैल्यू सर B2 निकलेगा 30 पहले। माइनस 30 एक माइनस 6, एक मिनट, B3 में मिनिमम लेना है, 30 माइनस 6, पहले B2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। B2 की वैल्यू क्या है? B2 सर 30 माइनस 10। हाँ B4 की वैल्यू 30 माइनस 10, हाँ एक तो ये आ गया, ठीक है? हेलो यस सर। हाँ कितना आया? B2 कितना 20 आया? हाँ 20 20 आ रहा है, ठीक है? और B3 की वैल्यू कितनी है?12। इस पे 12 आ रही है। तो सर सेम ही होगा जैसे पहला था। B3 24 हो जाएगा ना सर, हाँ मिनिमम लेंगे ना बट। हाँ मिनिमम लेना है मिनिमम B3 में। मिनिमम नहीं लेंगे ना, क्योंकि अगर 4 से 2 पे जाएंगे और 2 से 3 पे जाएंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा फिर वो। हाँ सर ये तो बात है 2 से। क्या? 2 से 3 पे जाएंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड नहीं रहेगा ना सर।
हाँ, तो Backward वो रास्ता नहीं लेना है, वो रास्ता लेना नहीं तो वो रास्ता कंसिडर ही नहीं करना है। सर पहले तो हमें B2 ही निकालना पड़ेगा ना, हम B2 कैसे निकाल सकते हैं पहले? नहीं, B3 निकलेगा पहले, B3 हाँ निकलेगा, पहले 3 30 निकलेगा। में से 6 लेस होगा, 24 आएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 24। B3 24 आएगा सर। 24। यस हाँ, सर। और उसके बाद B2 की वैल्यू 8 माइनस करेंगे, 16 सर। हाँ 16 आ गई, अब आया actually। और उसके बाद B1 की वैल्यू, B1 0। ठीक है। यस सर। अब आप देखिए, माइनस करके देखिए, सब क्रिटिकल पॉइंट वही आ रहे हैं। ये किताब में आपके सॉल्व है, नहीं सर, दूसरा नहीं है। यस सॉल्व सर। किया क्या एग्जाम क्वेश्चन है सर। है? नहीं, सॉल्व नहीं किया हुआ है। नहीं नहीं सर। सर स्कैनर में सोल है। देखिए, ड्रॉ द एक्टिविटी आपने कर लिया पहला, फाइंड क्रिटिकल पाथ ये भी आपने कर लिया, फाइंड द टोटल फ्लोट टाइम माइनस करते जाएंगे, आपका निकल आएगा। बस हो गया। हेलो, यस यस सर। तो तीनों हो गए। यस सर। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। सर इसमें टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का आंसर क्या क्या होगा? हाँ, जो तो दो पूछे हैं, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। हाँ, टोटल फ्लोट का टाइम का मतलब क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पाथ, यस सर। उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको आप टोटल कर देंगे। और फ्री फ्लोट का मतलब होता है ईच एक्टिविटी को आप कंसीडर करते हैं। जब F1 माइनस B1 करेंगे, हेलो, यस सर। तो वो आपका फ्लोट फ्री फ्लोट आएगा। और जब F1 माइनस B1 करेंगे और F2 माइनस B2 करेंगे, F2 माइनस 3 करेंगे, जो टोटल टाइम आएगा दैट इज टोटल फ्री टाइम आएगा। ओके सर। हेलो, यस सर। तो ये मतलब आपका ये हो गया। अब मैं अब इसमें एक और स्टार्ट करता हूँ जरा, बस आपका कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, ये लास्ट चैप्टर है। ये सबको क्लियर हो गया? चलिए, अब मैं थोड़ा सा चैप्टर आपको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को Yes. करने के लिए आपको मैं 3 आदमी देता हूँ, ठीक है। 3 आदमी देता हूँ। एक आदमी जो है, फर्स्ट आदमी, वो इस काम को मतलब क्या बोलते हैं, क्या बोलूं मैं, एक काम इस पे ले लेते हैं। हाँ, इसी में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी का फर्दर एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अभी 12 मिनट है मेरे पास, 12-15 मिनट है, तो मैं सोच रहा हूँ आपको नई चीज पढ़ाई दूँ फिर, ठीक है। हेलो, एक एक्टिविटी को करने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, मैं प्रियंका को बोलता हूँ, प्रियंका को, कि ये डिस्टेंस तुमको ट्रैवल करना है, तो ये जो है ये 2 घंटे में ट्रैवल करती है, 2 आवर्स में ट्रैवल करती है, ठीक है। और दूसरा राहुल को, ठीक है, राहुल को बोलता हूँ, तो वो जरा सुस्त आदमी है, वो इसको 3 आवर्स में कंप्लीट करता है, ठीक है। और एक प्रदीप को, ठीक है, प्रदीप को मैं बोलता हूँ, वो जो है वो इसको 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। ये बात समझ में आ गई? एक ही काम को 3 आदमी 3 तरह से हैंडल कर रहे हैं। हेलो, जैसे मैं यहाँ से मेट्रो जा रहा हूँ, ठीक है, मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर दूर है, आई वॉक वेरी फास्ट, तो मैं बड़ा खुश होके दौड़ता दौड़ता जा रहा हूँ,
and within 15 minutes I complete the journey. But another gentleman who is lethargic, he doesn't want to move fast. तो वो उसी काम को वो 40 मिनट्स में खत्म कर रहा है. हेलो. Yes, sir. एंड जनरल पब्लिक जो है उस डिस्टेंस को वो 25 मिनट में खत्म कर रही है. तो लाइफ में 3 तरह के लोग होते हैं. वन इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक, अनदर इज कॉल्ड मिजोमेस्टिक एंड थर्ड इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक. तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं कि आई विल फिनिश दिस जॉब वेरी अर्ली. पेसिमिस्टिक जो होते हैं वो जिंदगी से निराश होते हैं और वो उस काम को बहुत डिले के साथ करते हैं. और जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है उसको बोलते हैं मिजोमेस्टिक. ना वो ऑप्टिमिस्टिक है और ना ही वो पेसिमिस्टिक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज कंप्लीटिंग द जॉब. तो किसी भी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर देयर. वन इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक. कहाँ गया? हाँ, one is called optimistic, another is called most likely, and third is called pessimistic. ये बात समझ में आ गई? अरे बोलिए. Yes. हेलो. अब इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मैंने बताया कि इसको ये ऑप्टिमिस्टिक है, 2 आवर्स में खत्म कर देता है, ये 2.5 आवर्स में खत्म करता है और ये जो है ये 3 आवर्स में खत्म करता है. ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. लेकिन इसमें आपको एक्टिविटी का टाइम तो मालूम नहीं पड़ रहा. इस एक्टिविटी का टाइम तो मालूम नहीं पड़ रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए. तो लिख लीजिए, टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख लीजिए. टाइम इज इक्वल टू, लिख लीजिए, a प्लस 4m प्लस b डिवाइडेड बाई 6. हेलो. यस सर. तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 2. m की वैल्यू क्या होगी? 2.5. और b की वैल्यू क्या होगी? 3. तो इन सबको ऐड करने के बाद क्या टाइम, डिवाइड बाई 6 करेंगे, क्या टाइम आएगा? टू 2.5 आ जाएगा. ये कैलकुलेट कर लेंगे. अब आ जाइए अपनी किताब पे. अब अपनी किताब पे आ जाइए. किताब पे ये क्वेश्चन कहाँ है सर? Last question. Last Question number 39. 39 है. Yes, sir. कहाँ गई किताब? हाँ, 39. Yes, sir. 39 भी है, 36 भी है. 36 है. Yes, sir. कहाँ है बच्चा? ये वाला? Page number 350. ये है ना? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये नेटवर्क पहले ड्रॉ करिए. हेलो. Yes, यस sir. सर. ये नेटवर्क ड्रॉ करिए और इसमें हर फॉर्मूले को क्या हुआ ना, ये ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और ये ए एम और बी, इससे आप टोटल टाइम, एक्टिविटी टाइम निकाल लेंगे. Yes, sir. तो ए की वैल्यू 14 रखेंगे, एम की वैल्यू 17 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे और बी की वैल्यू 25 रखेंगे, डिवाइड बाय 16 करेंगे. क्या टाइम आता है? कैलकुलेट करिए. Okay, sir.
17.83. ये आ गया? हेलो, Yes, sir. ये साइड में कैलकुलेट करके दिखाया उसने टाइम। Yes, sir. इसको ऐड करेंगे आपको बाकी क्रिटिकल पाथ निकालने आ गया, क्योंकि आपने टाइम मिल गया। अब आपको आप क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट कर लेंगे? Yes, sir. कर लेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को करिए, Yes, sir. पहले इस क्वेश्चन को करिए, इतना ही पोर्शन करिए जितना मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ठीक है? Okay, sir. चलिए करिए। जब आपके पास एक्टिविटी का टाइम कैलकुलेट हो गया, तो बाकी सब काम आप लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, क्रिटिकल पाथ सब कैलकुलेट कर सकते हैं। हेलो, Yes. Yes, sir. हाँ, तो आप करिए इसको और देखिए आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। नहीं कर पाते तो मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा फिर। अगली क्लास मेरी नेक्स्ट वेडनेसडे को है ना? अच्छा, अगले क्लास में शायद मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर दूं। Okay, हेलो, sir. मैं ये खत्म करने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट कर दूं, ठीक है सर। फिर आपके इसके बाद कॉस्टिंग ही स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आप लोग को ये ऑपरेशन रिसर्च वाला पार्ट समझ में आ गया पूरा? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। चलिए, एक्चुअली मैं बाहर चला गया था, कंट्री से बाहर चला गया था, ये आपकी क्लास नहीं ले पाया। हेलो, Okay. यस सर यस। मैं बाहर चला गया था लेक्चर लेने के लिए, ओके सर। मेलबोर्न यूनिवर्सिटी गया था लेक्चर देने के लिए, तो इसीलिए फिर मैंने क्लास मना कर दी थी। ओके। सर यहाँ तक तो हो जाएगा, उसके आगे क्या है? हैं? यहाँ तक तो ये हो पार्ट जाएगा। तो हो जाएगा सर, इसके आगे वाला ये वेरिएंस जो निकाल रखा है। ये फॉर्मूला यूज करना है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम जो है ना, उन दोनों को माइनस करके डिवाइड बाय 6 कर दीजिएगा। ओके। तो आपका आपका तो वेरिएंस जब निकलेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का काम है। अभी मैं ये पढ़ाऊंगा आराम से, मैं ओके सर। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक पहले है सर, ठीक है क्रिटिकल सर। पाथ निकालना सीख लीजिए। हेलो, हाँ यस सर, ये सर। तो हो जाएगा। बस वो ये 2-3 मिनट का काम है, ये 2 मिनट में मैं समझा दूंगा मैं, ठीक है सर। तो वो अगली क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। If anybody has any doubt, you express your doubt. I'll try to clarify it. और यदि आप नहीं बताएंगे तो I will assume कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ठीक पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। हेलो, so it is my Okay. personal Yes. request to all of you
that you should express your doubt without any hesitation. Yes. ठीक है? Okay, sir. Okay, Yes. sir. Okay, enjoy your day. Okay, bye bye. Thank you. God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Sir.